Okay, visible now. So Yes, yeah, sir. tell Yes, me. sir. We were doing lecture 4, tutorial 1, question number 13. I think 13 is the last question, ना? हाँ Yes, सर. sir. Oh, Yes, okay. sir. So 13 question जो है वो मेरे ख्याल से I think it's from like SC Verma. Okay. So it is saying a parachutes after bailing out of the plane falls 52 meter without friction. Okay. When the parachute opens, she decelerate at the rate of this and reaches the ground with a speed this. How far is the parachute? Okay. For how long is okay, fine. So suppose how we will solve it. Suppose okay, this is our ground. Okay. And suppose यहाँ से start किया उसने. यहाँ से. This is our start point. So parachute, you know, she is coming down. So what is the initial velocity of this parachute is? 0. Zero. Okay, so we can say 0.0. इस point को हमने बोल दिया point A. Velocity at point A is 0. And it is saying that 52 meter it has, you know, coming down without any yeah. So this point I have called it point B. And what is the distance between point A and point B? 52 meter. Okay. What is in this area? What is the acceleration from A to B? What is the acceleration? 2.1. No. Without friction, this is The friction. Oh, G. 9.8 G. meter per second square. So G. from Sorry. A to B, this is a free fall. There is no parachute open, nothing is there, no air friction, nothing. Once he came here, this much. From B to C, the acceleration is how much? 2.1. 2.1. 2.1 meter per second. But कहाँ की तरफ? Upward. Minus उसने क्या बोला? 2.1. Minus हाँ, मतलब 2.1. अपवर्ड है ना, और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि कहाँ की तरफ है? डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, क्योंकि उसको स्लो डाउन होना है ना. डिसेलरेट का मतलब द एक्सेलरेशन शुड बी अपोजिट टू द वेलोसिटी. वी नो दैट द वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द एक्सेलरेशन शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो and reaches the here with velocity. Velocity at point C is how much? 2.9 meter per second. And now we have to find this total height, capital H. And what is the total time? Suppose यहाँ पे t equal to 0 है, so what is the time at C? So how will we do it? Tell me. So first we will solve from A to B. Okay. Yes. So थोड़ा सा इधर I'll make some space so that I can solve here only. Okay. So I will represent all those parameters here. In this region, acceleration is G. कहाँ की तरफ? Downward. In this region, acceleration is क्या था? 2.1. 2.1. 2.1 और कहाँ की Onwards. तरफ? On. Upwards. Okay. So now let's study from A to B. Okay. I can write equation for velocity at B. So what will be the equation? Velocity of B ka square equal to velocity A square plus 2 into acceleration into यहाँ से यहाँ तक की जो height है, suppose उसको हमने बोल दिया h1. Fine. Okay. What is the velocity at point A? 0. So I will write velocity at point B square is 2 into acceleration is 9.8 and height is 52. So velocity at B will become how much? Solve it. Root of 2 into 9.8 into 52. हाँ वो तो ठीक है, but what will be the value of that? वो तो मुझे पता है. So 2 into 9.8 into 52, it will become 1019.2. Okay. And if I take the value of G as 10, so what will it become?
if I take 520 into 2, 1040. So we will take G as 10, okay? We will get that like a approximately value. So one now doesn't matter. So we'll take 10. So it will become velocity at B is 1040 meter per second. And what is the approximately value of this? What is the root of an 1010? 2.25. 1 2 What? point 32.25. 32. Hmm? Yeah, 32.25 25. meter per second. Fine. Now I will put the equation between velocity at B and velocity at C from for B to C. I can write down velocity of C square equal to velocity of A square plus 2 into A into S. है ना? V square equal to U square plus 2S. So velocity at C, what is given? 2.9 square. Velocity at A का square क्या है? 1040. यहाँ से इस वाली इक्वेशन से प्लस यहाँ पे पेन प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा? माइनस, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ना, स्लो डाउन हो रहा है वो, तो माइनस 2 सर पर मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पे, सिर्फ वही नहीं, एक्सेलरेशन लगेगा। हाँ उसने दे दिया ना कि शी डिसेलरेट विद दिस, मतलब दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ओके okay? And suppose this height is suppose h2 and this is h2, so can I get the value of h2? Yes, यहां से आ जाएगी ना h2 की वैल्यू, क्या बन जाएगा? 1040 minus 2.9 square upon 2 into 2.1, so right, इस वाली इक्वेशन से, so our total height capital H will become h1 is 52 plus h2, so this is our total height कि from what height it started falling, और what will you do with the time? तो टाइम के लिए बताओ, यहां से स्टार्ट किया A to B, तो विल से फॉर टाइम A to B, टेल मी कौन सा इक्वेशन आएगा? UT plus half AT square. H equal to UT plus half into AT square. The height, value of height is 52 meter. 52 equal to initial velocity 0 plus half acceleration is 10 into T square. So T will become 5, so it will become 52 upon 5, the root. So this is our T1, you can say. And for B to C, I know the velocity here, velocity at B, and I know the velocity here at velocity at C. So I will write velocity of C equal to velocity of B and acceleration into time T2. So velocity at C is given 2.9. Velocity at B is this 32.25. Minus acceleration is 2.1 into T2. So it will become 32.25 minus 2.9 upon 2.1. सर हाँ या सर A to B में भी फर्स्ट वाले यूज कर सकते हैं ना? यस, हाँ निकालने उसको भी के कर लिए। सकते हैं, यस यस यस, हमको पता है ना वेलोसिटी यहाँ से पता है, तो v इक्वल टू u प्लस t लगा सकते हो, फाइन. यस सर। So total time will become t1 plus t2, total height will become h1 plus h2. हाँ, any doubt in this? No, हाँ sir. भाई, no, everyone done? Okay, more? और कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सर वो A to B एक बार वापस समझाना सर। A to B जब आ रहा है पार्टिकल, तो पार्टिकल का फ्री फॉल हो रहा है, राइट? और and the velocity at point A is 0. I have just drop it, and velocity at point B I have to find. So what did I write? I write velocity of B ka square equal to
वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन होती है ना हमारी, v square इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. Yes, So sir. I know that my initial velocity is 0, so I write vb का square, okay, equal to this, and I know from a to b the value of acceleration is g, so I'll take the value as 10. So fine. सर Okay. हाँ सर B2C एक्सेलरेशन 2.1 है और ग्रेविटी भी है ना सर, मतलब नहीं रिजल्टेंट है वो, रिजल्टेंट है दिस इज ओके कि दैट पैराशूटिस्ट इज डिसेलरेटिंग विद दिस, क्योंकि उसको तो अपना फील हो रहा है ना कि एट व्हाट रेट आई एम स्लोइंग डाउन, सो दैट इज द रिजल्टेंट. ओके और सर हाँ ये जो जब डिसेलरेशन होता है, जब दिया होता है कोई और, तभी ग्रेविटेशनल डिसेलरेशन क्यों नहीं काउंट होता? मतलब नहीं उसने बोला हुआ है कि द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन एट दिस रेट, सो वो हमको अपने रिजल्टेंट दिया हुआ है कि द पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन एट दिस रेट, वो सब कुछ उसमें एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी. अच्छा. ओके ओके और बताओ. सर 10th वन. अच्छा इसी का लेवल 1 का ही. हाँ सर 11th वन. ओके 11th इज यू नो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, वो विंडो वाला. हाँ सो इसमें क्या पूछा है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग. ड्रॉप इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए. सर ये भी पूछा था, मतलब ये भी पूछा था इनिशियल वेलोसिटी आंसर में. नो दैट इज नॉट द एक बॉटम, एक सेकंड, द vt and vb are the velocity of the ball at the top and bottom of the building, then find. सर इसलिए नहीं आया मेरा. वो ये नहीं यार, बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी टॉप ऑफ विंडो होगा. हाँ ओके विंडो होना चाहिए ये. हाँ सर मैंने भी Top of देखा. हाँ तो इसमें एक्चुअली क्या होना चाहिए देखो, लेकिन फिर फाइंड क्या करना है. सर वही टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना था, पर टॉप तो 0 ही होगा ना, क्योंकि वो ड्रॉप किया और अपने विंडो बोला तो विंडो तक आ गया था. तो ये सपोज हमारे पास में एक विंडो है, इस विंडो का हमको दिया हुआ है डिस्टेंस इज 3 मीटर. तो बॉल यहाँ से और यहाँ तक आने में नो एकदम फाइन, एकदम सब कुछ सही है. यहाँ पे वेलोसिटी है 0 नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है. ठीक है, उसको सपोज हमने बोल दिया यहाँ पे सपोज हमने बोल दिया v1, और ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है इसके आखिरी पॉइंट पे v2, जो उसने बोला ना vt एंड vb टॉप एंड बॉटम, तो ये लो vt vb. अब ये बोल रहा है कि इट टेक्स 3 दिस एंड टाइम इज 0.5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड. ओके तो बताओ कैसे किया. एक्सेलरेशन 10 लिया सर. एक्सेलरेशन अपने को 1 गिवन है, तो क्या लगा सकते हैं इसके अंदर. v is equal to u plus at. देखो ये यहाँ पे सपोज मैंने बोल दिया वेलोसिटी बोल दी, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी बोला 1, यहाँ मैंने वेलोसिटी बोला 2. सो आई विल फर्स्ट सॉल्व एंड दिस थिंग ओनली. सो पहली इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, v2 इक्वल टू v1 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 इनटू कितना टाइम लगा 0.5 मतलब 5 5 होगा. तो v2 इक्वल टू v1 प्लस 5. This is my equation 1. Second equation I will use, बताओ कौन सा, ut plus half at square वाला. ठीक है, so I will write distance is 3 meter, the initial velocity is v1 into कितना टाइम लगा 0.5 plus half into 10 into 0.5 का
होल का स्क्वायर। स्क्वायर, यस। राइट। तो यहाँ से Yeah. मेरे पास v1 आ गया, क्या आएगा v1 3 इक्वल टू 0.5 v1 प्लस ये कितना बन जाएगा 5 कितना 125, तो 1.25 25 है ना। हाँ वही। तो ये कितना बन जाएगा 2 में से ये गया तो 1.75 डिवाइडेड बाई 0.5, तो कितना बन गया सर 12.5 होगा। क्या, नहीं ना यार, इसका वो स्क्वायर जो आपने करोगे ना, 1. नहीं सर किया तो 0.5 का 2.5 है। 0.5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2.5 पॉइंट अच्छा हाँ नहीं 0.25 हाँ 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 हाँ, तो ये कितना बन जाएगा 5, तो 3, ये आ गया 35 अपना मीटर पर सेकंड ना। हाँ So सर। now I know that velocity at this point is 35 meter per second and velocity as here is सर 3.5 आएगा ना 3.5 है। सर 3.5 आएगा। okay 3.5, yes हाँ एक पॉइंट और भूल गया ये वाला। ओके तो ये बन गया मेरे पास में 3.5 और वो कितना बन जाएगा 3.5 प्लस 5 8.5 कितना होता है 8.5, 8.5 तो 8.5 आ जाएगा 8.5 मीटर पर सेकेंड। इधर तक आ गया था, इसके बाद का नहीं। अब बताओ सपोज अब मुझे ये यहाँ के निकाल, नहीं हमको है ना यही निकालना था। सर ये तो आ गया था। हाँ बस इतना ही आएगा। अब तुमसे वो ये पूछ सकते हैं कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको मैं लूंगा 0। उसका कहने का मतलब था कि हमको जो वेलोसिटी है ये वाली निकालनी है v1 और v2। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपना 0 ही रहेगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का हाइट होकर निकाल लोगे। हाँ सर। सर तो क्वेश्चन में टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंडो होना चाहिए ना। हाँ हाँ और सर। क्या वो है ना विंडो होना चाहिए। हाँ सर। हम और बिल्डिंग नहीं निकाल सकते, और बॉटम तो कहीं भी हो सकता है ना यार, ये लो स्कोर नहीं चले आऊंगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बॉटम ऑफ ठीक है? विंडो। हाइट नहीं दिया हाँ सर। हाँ वही। तो हम ये ऊपर का निकाल सकते हैं कि विंडो के ऊपर कितना पार्ट है, उसको तो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करोगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u square plus 2as। तो हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली चीज है वो तो हमारे पास कितना भी हो सकता है ना, उसको थोड़ी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ सर। ओके चलो आगे आओ। और लेवल 2 के अंदर बताओ कौन सा। स्टार्ट किया किसने लेवल 2। नहीं क्या सर। सर एक डाउट है सर, डाउट है, हाँ डाउट है। हाँ बताओ यार कौन सा। एक एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ ओके पहले ये बताओ कि इस पूरे बैच के अंदर मेडिकल वाले कितने बच्चे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम अन मेडिकल बैच। निरंजन सर। ओके बस वन सिंगल स्टूडेंट ओनली। नहीं सर, हैंड्स रेज हैंड भी किया है, कुछ ना। अच्छा रेज हैंड, ओके यार मेरे को दिखता नहीं है ना इसमें रेज हैंड। ओके जय श्रावणी निरंजन। ओके नोट level 2 exercise is not made for medical students, so they can straightforward leave it. Okay, these kind of questions comes in IIT JEE। जो अपने वाले एग्जाम होते हैं नीट वाले मेंस वाले, उसके अंदर लेवल 1 is more than sufficient, so सर you can leave। है हाँ what केवीपीवाई के लिए है वो क्वेश्चंस। बेटा केवीपीवाई का जो पैटर्न होता है यस उसमें आते हैं, उसमें आ जाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यस, बट इफ वी टॉक अबाउट नीट और एम्स नहीं, these kind of question don't come in that kind of examination। सर क्वेश्चन 3 हाँ लेवल 2। क्वेश्चन 3 हाँ लेवल 2
Question 3. So see, the funda of level 2 exercise is that I will tell you how to think about the question. It's not about solving the question. Okay. So as soon as the question comes in our in copy or paper or something, I will see how to think. Like question 3. What is happening? A elevator without a ceiling is ascending with a acceleration with a constant speed 10 meter per second. So first you have to make the that thing. Okay, so suppose and this is our lift. Okay, and this lift is going upward with a speed 10 meter per second, and the speed is constant, is given. A boy on the elevator shoots a ball directly upward. Okay, from a height 2 meter above the elevator floor. भाई जो boy होएगा उसकी height भी होएगा ना कुछ तो. So suppose ये हमारे पास में boy है. ठीक है, इसने यहां से एक बॉल को शूट किया ऊपर की तरफ. At this time elevator floor is 28 meter above the ground. So suppose this is our ground, and the ground, this is 28 meter. The initial speed of the ball with respect to elevator is 20. Now tell me, suppose if you are sitting in the elevator, what is the velocity of you with respect to elevator? सर उधर ही कंफ्यूजन हो रहा है. रिलेटिव मतलब क्या, मतलब कैसे? Zero. Right. मतलब suppose if there is a car, there are two men in there, suppose A, B, and there is a one more guy here, C, and the velocity of car is suppose 10 meter per second. So if I ask you, what is the velocity of A with respect to C? So ये जो observer है C will say that A is moving in the horizontal direction with a velocity 10 meter per second. But what is the velocity of A with respect to B? Zero. Because coordinate of man A is not changing with respect to B. है ना? So same thing is that. So if they see the velocity of that thing, this is lift is 10 meter per second, and it is saying that the velocity of ball is 20 meter per second with respect to elevator. So the velocity of this ball should be 30 meter per second. The total with respect to ground. Net with respect to ground ना, उसकी actual velocity कितना है? 30. इसका कितना है? 10. तो इसको क्या फील होएगा बॉय को? तुम्हारा velocity कितना है? 20. So this is actual velocity. When ball is in the air, तो इसका acceleration कितना है? Minus g. जब if Yes, any sir. object is in the air, then there is only one force acting on the particle, that is a gravity. So when this thing is in the air, then everything will forget and will say, okay, now the gravity is acting. Fine. What is the maximum height above the ground does the ball reach? How long does the ball take to return on the elevator floor? Okay. Now what will happen? The ball is going up. The lift is also going up. When the ball will come down, but lift is going in the upward direction only. So suppose after time t, the ball lands on the floor of lift. So see, so after some time, what will be the scenario? The scenario will be like this. After time t, the lift will come here ना, lift भी ऊपर जाएगा ना थोड़ा तो, ठीक है? Yes, sir. This is t equal to 0. This is our t. So first we have to make the diagram. Now the ball has come here at the bottom of this now. Okay, what will be the displacement of lift? The velocity of lift is constant, right? So what will be the displacement of lift? Velocity into time. So this distance, this distance will be 10 into t.
because velocity of lift is 10, and this ball has gone up and come down. So now tell me, what is the total displacement of the ball? Displacement of the ball is this ना, यहाँ से यहाँ तक का Displacement of ये वाला हाँ इतना, ये क्या है देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, उसमें हाइट कितना दिया था बॉय का, 2 मीटर 2 मीटर. So what is the displacement of the ball is 10t minus 20 minus 2. Fine. Okay, so now for ball displacement d is 10t minus 2, उसका initial velocity is 30, acceleration is minus 10 meter per second square. Because I am taking that upward direction as positive ना, then my acceleration will be negative. So बताओ ना कौन सा इक्वेशन लगाओगे, सेकंड. So 30. सर डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आएगा ना? नहीं ऊपर ही लिया है ना मैंने तो डिस्प्लेसमेंट, देखो ना, पहले बॉल यहाँ थी, अब बॉल यहाँ आ गई तो ऊपर है ना. हाँ सर, हाँ. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10t minus 2 equal to initial velocity 30 into t minus half into 10 into t square. कितने वेरिएबल हैं इक्वेशन में? 1 t. Then we'll get the value of t. How? So we'll say 10t plus 2 equal to 30t minus 5t square. तो क्या बन जाएगा? 5t square minus 20t plus 2. इसको यहाँ 10t minus 2. minus 2. Yes, minus 2. हाँ तो फिर minus. Okay. Now we have to find out the root of t. तो क्या होता है फॉर्मूला? minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, right? Yes sir. a plus minus b square will become 400 minus 4ac, तो plus तो minus ना 4 8 8 into 5 कितना Plus होता है? 80. 80 और 40 40 4ac ना upon 2a is 10, so it will become 20. हमारा प्लस वैल्यू लेंगे ना, बिकॉज दिस इज अपने ग्रेटर देन 440 अपॉन 10. फाइन. तो हमारे पास में आ गया t का वैल्यू. तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना आएगा? रूट 440 कितना होता है? व्हाट इज रूट 440? 20.21. Approximately 20.98. हाँ सर 21 ले लो. हाँ तो अपने अप्रोक्सीमेटली ये ले लिया, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा वेलोसिटी कितना आ गया? 4.1. कितना आ गया? 41. So okay, अप्रोक्सीमेटली 4.1 ना. तो ये हमारे पास में क्या आ गया? t आ गया. कि आफ्टर हाउ मच टाइम, उसने क्या पूछा है? हाउ डज लॉन्ग द बॉल टेक टू रिटर्न टू द एलिवेटर. सो हमारे पास में आ गया. तो 4.14 उसके अंदर 4.2 दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा. सर वो 10t कैसे है वो नहीं समझा भाई. हमारा एलिवेटर कितना ऊपर गया? एलिवेटर का वेलोसिटी कितना है? 10. तो आफ्टर टाइम टी वो अपने जो उसका बेस जो है वो है ना, कहाँ जाएगा, कितना ऊपर चला जाएगा? अपने वेलोसिटी इनटू टाइम. हाँ यस सर. ठीक है. ओके, अब क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द. सकते हो क्या बेटा? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. अपने फिर से बनाता हूँ डायग्राम. ये हमारे पास में ग्राउंड, पहले एलिवेटर यहाँ था, ये एलिवेटर ऐसा, ठीक है. यहाँ पे तुम्हारे पास में बॉय खड़ा हुआ है, उसने बॉल को यहाँ से फेंका है, तो ये जो बॉल है ये तो ऊपर जाएगी ना. अब लेकिन ये हमारे पास में कब है? t इक्वल टू 0 पे. ये हाइट 2 मीटर, वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इनिशियल हाइट इज 28 मीटर. द बॉल विल गो अप, बट आफ्टर टाइम t क्या होगा? द एलिवेटर विल ऑल्सो गो अप. तो सपोज हमारा एलिवेटर यहाँ पे आ गया, तो एलिवेटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अपना वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है. तो वेलोसिटी कितना है? 10 इनटू t. द बॉल विल गो अप, ठीक है, एंड
उसने बोला है कि व्हेन विल इट रीच द बॉटम, तो यहाँ पे आ गया बॉटम पे। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। तो बॉल पहले यहाँ था, ये उसका इनिशियल पोजीशन, ये उसका फाइनल पोजीशन, तो इतना हुआ ना डिस्प्लेसमेंट बॉल का। एंड आई नो दैट दिस हाइट वाज गिवन टू मी 2 meters, so what will be this 10t minus 2. Fine. सर Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कैसे आया? बॉल पहले यहाँ पे था ना, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल इज दिस हाँ एंड फाइनल पोजीशन इज दिस, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? हाँ 20 minus 2। 20 minus 2. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या है, देखो ये कितना है 28, ये कितना है 2, तो क्वेश्चन मेरा क्या बन गया? क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है जो कि हमारा ग्राउंड से कितना ऊपर है 30, और इसका वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, कहाँ पे जाके स्टॉप होएगा? 0 पे। जब तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होता है वो होता है u स्क्वायर बाई 2g, और u स्क्वायर बाई 2g के अंदर हम 30 को ऐड कर देंगे। हाँ सर। है ना? यस सर। बस, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा 900/20 प्लस 30, तो कितना 45 प्लस 30 कितना 30, तो कितना होता है 45 प्लस 30 75। 75। यस, सो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 75। सर और टाइम कैसे फाइंड किया? तो टाइम तो आ गया ना t, ये देखो ना क्वाड्रेटिक हमने लगाई यहाँ पे, ये हमारे पास में ये जो इक्वेशन आई इसमें एक ही वेरिएबल है ना, तो वो तो कैसे लगा क्वाड्रेटिक कंडीशन एक बार बताओ, कंडीशन ut कैसे प्लस लगा? हाफ एटी स्क्वायर, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना। हाँ यस सर। ये क्या उसका इनिशियल वेलोसिटी बॉल का, और ये हाँ क्या एक्सेलरेशन। तो सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर वो बॉल तो पूरा ऊपर जाके वापस नीचे आया है ना? हाँ हाँ, तो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट तो उसका कितना हो गया टोटल। भाई हम तो ये जो इक्वेशन तो अपने ने किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं ना, ये जो इक्वेशन होती है तो हमने और लगा दिया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट, अब तो ut किसी प्लस भी हाफ टाइम एटी लगा सकते हैं। एनी टाइम, और तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्वेशन लगाओगे उस पॉइंट ऑफ टाइम का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके तो इस टाइप से हर क्वेश्चन के अंदर तुमको प्रॉपर यू हैव टू मेक द डायग्राम, यू हैव टू एनालाइज द थिंग कि वेयर द बॉल इज गोइंग, वेयर द लिफ्ट इज गोइंग। सो level 2, the meaning of level 2 question is that you have to go very smoothly, slowly every day solve one question or two question. It's not like you have to solve all 15 question in a single day. No, your mind will be so tired if you do all 15 question in a day. So slowly fine. So fine, I will leave lecture 4 here and let's start lecture 5. Lecture 5 is more or about graphs. Graphs, maybe there are two things, one is called slope and one is called area. Sir, What is slope? can you change the orientation to landscape? Okay, fine. Yeah, better. Okay, slope क्या होता है भाई? We have completed a differentiation and integration. This whole lecture is all about change in slope x upon change in y. So this is, बेटा तुमने उल्टा बोल दिया ना, slope is dy by सर dx. वो मैं वेलोसिटी के लिए बोल दिया था। हाँ, yes, okay. And if I talk about area, so it becomes fx into dx. So first we'll talk what is the definition of rest and motion. I told you in the first class only. Yeah, Sanjana, tell me what is the definition of rest or motion. When body
does not change its position and time passes. Sir, can yeah, you scroll up? your Sir, voice can you is not. scroll up? Yeah. Sir, can you scroll up? Thank you, sir. Yes. Okay. Who will tell me? Sir, Object that does not change their position with respect to its surrounding. Okay. with That means respect it is to a at. reference point, Yes, we with respect to a reference point and with respect. with Okay. respect to So time. now I will put that thing into graph, and by looking at the graph, you will be able to tell that the particle is in motion or not. So suppose I write this is suppose x. So what does x means? The x coordinate of the particle. On this axis I am representing time. This is t, and this is my x is position. And suppose I have made one more graph, time. Okay, t, and this is suppose x. X is what? Position. So suppose I have made two graphs. One graph is this, and one graph is this. So what can I conclude with the graph one? In the graph, First one is I rest and Object is second in is rest. yes. in motion. Suppose I can say Object suppose is at rest. this point is x naught. So see, पहले मैंने यहाँ देखा तो उसका x coordinate कितना है? x naught. Then I look at okay, this point x coordinate is x naught. Then I look at this x coordinate x naught. So I can say position is not changing with respect to time. So rest. So मैं कह सकता हूं कि this point is rest. How about the second one? In motion. In motion. See, उसका x coordinate देखो, पहले उसका x coordinate यहाँ पे है. Then the x coordinate is changing. Yes. With respect to time. So I can say position is changing. So motion. Okay. Now tell me what kind of motion is that? Can you say that this is a straight line motion? No, sir. No, sir. Non-uniform. No. Yes. नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन है ये. Yes, sir. Straight line. X coordinate ही change हो रहा है. Because how many coordinates are there for the particle? Only X coordinate. One coordinate is changing. So if the only one coordinate is changing, that means particle is moving along x axis. So I can say moving on x axis because only x coordinate of the particle is changing. Fine. हाँ भाई. Yes, sir. सर ये वाला क्या बोला सर, नहीं समझा. भाई देखो इस पार्टिकल यस इस पार्टिकल के पास में कितने कोऑर्डिनेट्स हैं भाई? जैसे लिखते हो ना पोजीशन में क्या क्या होता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, राइट? यस. तो इस पार्टिकल के पास में हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर देयर इन द पोजीशन वेक्टर? one. There is only x coordinate, and I will say that x coordinate of the particle is changing, right? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? Particle is moving along x axis only. So particle अगर x axis के along move कर रहा है, that means the motion is one dimension motion, or you can say straight line motion. Yes, so I will say straight line motion, और मैं कह सकता हूँ the particle is moving along x axis. Yes, sir. Right? Okay. Now tell me, उसके बाद हमने क्या किया था? Displacement. So what is the definition of a displacement? Final position minus अपने initial position. Right? Okay. So if I talk about in this part, graph 1, what is the displacement? I will say 0. Displacement
उसको मैं लिखता हूं डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा 0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम, राइट। यहां पे मेरे पास आएगा ये उसका इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सपोज इसको मैंने बोल दिया x1, ये जो पॉइंट है सपोज इसको हमने बोल दिया x2, ठीक है। ये हमारे पास में x3, सो आई कैन से व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। x3 माइनस ओके इनिशियल पोजीशन, हाँ x3 माइनस x1 होगा। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी टू पॉइंट ना, कोई भी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आई कैन राइट x फाइनल माइनस x अपना इनिशियल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। हाँ here displacement will be not equal to 0, यहाँ पे displacement हो रहा है, so that means the particle is in motion. If the particle is in motion, then the particle must be having an velocity, right? Yes. Yes, sir. Okay, and we have studied two type of velocity. One is average velocity and one is instantaneous velocity. So now we'll talk about velocity. So one is average velocity, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, so that is total displacement Upon total time. total time. So to total displacement upon total time. That's why I have written delta. Delta x And- by delta t. Okay, and if I talk about instantaneous, dx by dt. instantaneous velocity is dx by dt. dt. ये क्या होता है? This is slope. At Slope of x and t graph. So suppose there are two things, there are two lines. ये मेरे पास में ग्राफ है, ये t, ये मेरे पास में x. One graph is this black one. तो बताओ क्या होगा? What you can say about particle 1? Suppose इसको मैंने बोला 1, so रेस्ट में slope zero. Particle at rest. so I will say rest, So the velocity मतलब is कि zero. velocity is 0. So you can see what is the slope of this line. तो Zero. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Zero. क्या है तुम्हारे पास में x, यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है t, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा dx by dt, और हमारा dx by dt क्या होता है? Zero. वेलोसिटी, हाँ, velocity. ठीक है। तो आई विल से स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ is velocity. Okay, so this is at rest. Now tell me, suppose चलो इसके बारे में बात करते हैं. 2 for 2 क्या बोल सकते हो? पहली बात तो the particle is in motion, right? Because x coordinate of the particle is changing with respect to time. Okay, okay. तो हम कहेंगे कि velocity is not equal to 0. अब बताओ कि velocity कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव, बिकॉज स्लोप ऑफ दिस लाइन इज पॉजिटिव ना. देखो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव एंगल 1. तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कहाँ की तरफ है? पॉजिटिव डायरेक्शन में. अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव दैट मींस फाइनल पोजीशन इज ग्रेटर देन अपना इनिशियल पोजीशन. दैट यू कैन चेक हियर. सी सपोज ये तो ये सपोज मेरे पास में t1, ये मेरे पास में t2, ये मेरे पास में x1, ये मेरे पास में x2. So when I am going from t1 to t2, the position is changing from x1 to x2. So which is the greater, x2 or x1? x2 is the greater, na? So Yes, that means particle's velocity is positive. Particle moving in the positive direction. So I will say moving in positive direction with constant velocity. बताओ constant क्यों?
बिकॉज स्ट्रेट लाइन है ना, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। तो स्लोप अगर कांस्टेंट है तो हमारा मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, बिकॉज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज माय वेलोसिटी। फाइन। have you any doubt? Anyone? No, sir. No doubt, sir. No No, doubt, sir. sir. No, आगे sir. आओ, आगे आओ। तो हमको एनालाइज करना, वी हैव टू एनालाइज द ग्राफ। नाउ यू टेल मी, आई विल गिव यू सम। सर थोड़ा सा ऊपर का दिखाओ ना। हो गया सर। हो गया, चलो। तो आई विल गिव यू वन क्वेश्चन। ये हमको दिया हुआ वन ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, पोजीशन। तो फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन at t equal to 30 second. You are given the graph ki a particle is moving according to this graph, and then you have to find out what is the velocity of the particle and position of the particle at t equal to 30 second. Go. So velocity minus 1 meter per second. Okay. How about speed? 1 meter per second speed. Good. Position? Minus 30. Minus 30? Yes, sir. Minus 30. 30. No, not minus 30. Sorry, sir. Minus 20. Minus 20. Yes, minus 20. 20. Who will tell me else? Who else? Hmm. Okay, see, so first we have to find out the slope. ठीक है, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? Delta x by delta t. डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, आई नो दैट, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट। और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट। सो व्हाट Y equal to this mx is plus c. this. So I know that as shown, we can say this is line.
सो इक्वेशन क्या होता है लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस Max सी, plus ये C. लेकिन यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे y की जगह पे क्या है x, और X. मतलब x की जगह पे क्या है t प्लस कांस्टेंट, तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी. नाउ आई विल पुट फर्स्ट और दिस पॉइंट, so the coordinate of this point is 0, 10. 10. So if I write 0, 10, so it will become 10 equal to 0 plus c, so value of c is 10. Okay, so my equation will become x equal to 10t, नहीं c का value 10, C. So C mt 10. plus 10. Okay, now I will put this point. So what is the this point of coordinate क्या आएगा, 10, 0. So I'll put this. 0. So 0, m into 10 plus 10. So m will come out to be -1. So my equation will become x equal to minus t plus 10. Okay. Now what is the slope? Slope क्या होगा, dx by dt. तो अपने इसको को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बन जाएगा -1. दिस इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज -1. स्पीड कितना बन जाएगा 1. स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. Magnitude of velocity. एंड इफ आई वांट द x कोऑर्डिनेट कब, t इक्वल टू 30, तो जस्ट इसके अंदर पुट कर दो अपने t का वैल्यू 30. सो एट t इक्वल टू 30 मतलब x विल व्हाट -30 plus 10, that means -20. So at t equal to 30 second, the coordinate of the particle will become 20, -20. Fine. अबे किसी को डाउट? सो वेलोसिटी क्या आई? -1. भाई ये सो जो नेगेटिव स्ट्रेट नहीं लाइन, होती ना, हाँ वेक्टर नेगेटिव नहीं होता ना. अरे वेक्टर का डायरेक्शन तो नेगेटिव हो Magnitude. सकता है ना. मैग्नीट्यूड इज 1 बट द पार्टिकल इज मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, दैट इज व्हाई देयर इज ए माइनस साइन. ओके सर. फाइन भाई, समझ में आया? Yes, sir. Yes, ओके, आगे sir. आए. Yes, Yes, sir. sir. नाउ टेल मी. अब हम इसी को देखेंगे. सपोज और थोड़ा ऊपर करो. हो गया. जय सपोज बताओ, सो सपोज ये तुम्हारे पास -20 क्या है? -1. -20 पोजीशन कैसे आई? अरे यार हाँ इस वाली सर, इक्वेशन के patience अंदर, है. अबे इस इक्वेशन में अगर मैं t का वैल्यू पुट कर दूंगा 30, तो इसका मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट कब, व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज 30, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज t इक्वल टू 30 सेकेंड. तो इस पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा हो रहा है. सपोज इसको मैंने बोला x इक्वल टू 0, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, x इक्वल टू 10 से, तो यहाँ से स्टार्ट कर, कहाँ की तरफ जा रहा है, ये यहाँ की तरफ जा रहा है, तो चलता 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 यहाँ पे आ जाएगा ना. ये हमारे पास में कितना होगा, x इक्वल टू -20, यहाँ पे कितना टाइम आएगा 30 सेकेंड. x इक्वल टू 0 पे कितना टाइम आएगा 10 सेकेंड. तो पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ओनली, ठीक है, क्योंकि ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. फाइन. Yes, sir.
Okay, now tell me. I'll give you one more graph. X t. The graph is this. Now tell me what you can say. पहली चीज, पार्टिकल किसमें है? मोशन में है. हाँ Yes, because x coordinate is changing. Okay. Particle is accelerating. पार्टिकल कहाँ की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में? पॉजिटिव Positive. Velocity is Positive. positive because at every point of time you can check the slope. See, यहाँ पे slope आया, ये आया, फिर यहाँ पे slope आया, ये आया. Slope कैसा है? Positive है. And slope कैसा हो रहा है? Increase हो रहा है ना. देखो ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है. तो I will say that velocity is increasing. ठीक है? Okay. तो बताओ, अब इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती, दैट मींस द ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन. इफ द ग्राफ इज सम अदर structure other than straight line, then the motion is non uniform. But what can I say about this thing? I can say acceleration is what? Positive or negative? Positive. पॉजिटिव Because velocity is increasing. Slope देखो ना, यहाँ पे slope कम है, यहाँ पे slope कैसा है? बढ़ गया. Particle speed up कर रहा है या slow down कर रहा है? Speed up कर रहा है. Speed up. Speed up because velocity भी कैसा है? Positive, और मेरा acceleration भी कैसा है? Positive. When both velocity and acceleration have same sign, that means particle is speeding up. ठीक है ना? Speed up करता है. हाँ. Right. Okay. Now tell me, how about this graph? ठीक है, ये मैंने बोल दिया x कोऑर्डिनेट, ये मैंने बोल दिया t. बताओ क्या हो रहा है? और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है. इसको मैंने बोला a b c. हाँ भाई बताओ. नॉन यूनिफॉर्म मोशन Non uniform. Yeah. तो पहली चीज तो हमने बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म. ओके. और स्पीड अप, स्लो डाउन. सर एक मिनट कर लो ना. A to B speed up. A to B speed up and B to और C B to C slow slow down. down. तो देखो, अगर मैं पहले इसको एनालाइज करूं, मतलब कि मैं A to B, तो जो भी मैं इसके ऊपर ये बनाऊंगा, टेंजेंट बनाऊंगा, इसका स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव Positive. That means velocity is positive. So अब मैं A to C पूरा slow down होगा ना? नहीं रुको ना, पहले देखो यहाँ पे जो मेरा ये लाइन आ रही है, इसका स्लोप कैसा आ रहा है? Negative. नेगेटिव. तो मतलब जो वेलोसिटी है नेगेटिव. तो आई विल से A to B velocity is positive, B to C velocity is Negative. and what is the velocity at B? जीरो Zero. देखो ना स्लोप कितना हो गया? 0. At B velocity is 0. ठीक है, फाइन. अब आगे आते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं. तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? Negative. नेगेटिव. क्यों? देखो यहाँ पे ना वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव. यहाँ पे वेलोसिटी कैसा हो गया? 0. तो अगर कोई चीज पॉजिटिव से 0 चली गई, मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? Decrease हो रही है. डिक्रीज हो रही है. मतलब A to B जो हमारा एक्सेलरेशन होएगा वो कैसा होएगा? नेगेटिव. ओके, यहाँ पे बात करते हैं. B to C. Negative. B पे हमारा वेलोसिटी कैसा है? Zero. 0. और उसके बाद में जो हमारा वेलोसिटी है वो कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव. तो जो हमारा जो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. सब नेगेटिव. अरे पहले कोई हाँ. चीज तुम्हारे पास में 0 है, फिर वो माइनस हो गई हाँ है, और भी माइनस होगा. और भी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा ही कैसा है?
नेगेटिव। अब बताओ पार्टिकल स्लो डाउन कब हो रहा है और स्पीड अप कब हो रहा है? ए टू बी स्लो डाउन हो रहा है, A to B slow down, B to B slow down और B to B speed up. देखो जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम साइन कब आ रहे हैं हमारे पास में? बी टू सी में आ रहे हैं ना, तो स्पीड अप कब हो रहा है? बी टू C. बिकॉज एक्सेलरेशन ग्राफ तो टी की तरफ झुक रहा है, ऐसे कैसे होगा? तो क्या हुआ भाई? पोजीशन कम हो रहा है ना, स्पीड से क्या मतलब है? अच्छा सर हाँ। ए टू बी में एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? भाई देखो ना, ये यहाँ पे अपना वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव है ना, इस पॉइंट पे देखो स्लोप, हाँ सर। और ये यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया बी पे ऊपर जाते जाते? 0। जीरो। तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, फिर तुम्हारा 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन कैसा हुआ? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ठीक है सर, नेगेटिव। थैंक यू सर। और स्लो डाउन कब होगा? ए टू बी। This is the graph of a particle is thrown up with the velocity u. तो देखो मुझे बताओ, एक पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका, इसका वेलोसिटी सपोज मैंने बोल दिया 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऊपर जाता है? हाँ सर। ठीक है, ऊपर जा रहा है ना, तो हाँ। ये यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है कि मतलब कि स्पीड अप हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन। जब ये नीचे आ रहा है Speed तो up. क्या हो रहा है? Speed up. तो स्पीड अप। ये यही जो ग्राफ है वो ये है, बिकॉज हमारा एक्सेलरेशन कैसा है? और हमेशा ही नेगेटिव है ना, ग्रेविटी तो हमेशा कैसे रहती है? और नेगेटिव रहती है। हाँ। तो ये जो ग्राफ है वो है ना, इसी का ग्राफ है कि एक पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूं, देन पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी दिस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ प्रोजेक्टाइल मोशन का दिखाता है। यस है ना। तो अगर उसके अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आया था? x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आया था ना, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं तो देखो x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इसी का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? dx बाई dt क्या बन जाएगा? u माइनस gt। और ये क्या होता है? dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो हमको कौन पता ही है ये क्या होता है ना? यस सर। और अगर मैं वेलोसिटी को एक बार फिर से अपने डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो जो dv बाई जो dt आएगा माइनस जी आ गया ना एक्सेलरेशन। हाँ सर। यस सर। सो यहां से मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, और आई कैन से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप क्या बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? dv बाई dt। ठीक है। तो अभी जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको एनालाइज हम अगली क्लास में करेंगे। आज हमने जो एनालाइज किया है पोजीशन टाइम ग्राफ को एनालाइज किया है, अच्छे से जाके एनालाइज करना चीजों को। ठीक है। यस सर। रिमेनिंग चीजें विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। ओके सर। Thank you very much, sir. चलो। Bye. ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। बाय 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 बाय। Bye, sir. Thank you, sir.